اور حضرت فاطمہ بھی تھی وہاں. حضرت فاطمہ کو آپ دیکھتے تھے جبرائیل علیہ السلام, تو حضرت فاطمہ نے ان کو چچا کہہ کے سلام کیا, جبریل کو. جبرائیل علیہ السلام کو, کہ چچا السلام علیکم. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بیٹا میں چچا نہیں, میں تایا لگتا ہوں. آپ کیا پیغام دو گے تاکہ مسلمانوں تک صحیح بات پہنچتی رہے؟ انہیں تو یہی پیغام کہ سب سے پہلے تو آپ کو عزت دے, آپ کو عزت کے ساتھ بٹھاوے اور خوش دلی سے آپ سے مساوا کر کے آپ سے ملاقات کریں, اور جو آپ سوال جواب کر رہے ہیں اس میں کبھی بھی ذرا سے بھی برا نہ مانیں, خوش ہو کے ان کی بات کا جواب دے. اگر کوئی بات کا جواب نہیں بھی آتا تو آرام سے ان کو کہہ دیجیے دیکھو یہاں میں جانتا نہیں ہوں یا مجھے سمجھا. اندر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت تھی وہ نہیں بلکہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. جی جی جی, اور 23 سال نبوت پورا ہونے میں یہ پورا ہونے تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. یہ ہے معاملہ. یعنی کہ 23 سال آپ کے پاس برابر وہی آتی رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ میرا نام غلام مصطفیٰ کیلاش پوری ہے. جی غلام مصطفیٰ, ماشاء اللہ زبردست. اچھا چاچا, ہم نا اسلام کے متعلق مسلمانوں سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر جاگرکتا پیدا ہو, وہ ان کے اندر اسلام کو لے کر بیداری پیدا ہو. کیوں؟ تاکہ جب ہم جانیں کسی بات کو, آنے والی جو جنریشن ہے ان کے سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں ان کو. تو اگر آپ کی اجازت تو کچھ بات کر لیں. ہاں جی, جہاں تک میری جانکاری ہے میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ, اور نئی جانکاری ہے تو اس میں کوئی مجھے شرمندگی یا مایوسی تو ہونے کی نہیں. آپ جیسے جب حضرات ہمارے سامنے ہیں تو ان سے معلومات بڑھے گی, ہماری نالج بڑھے گی. چلیے ماشاء اللہ, آپ نے ایک بڑی گہری بات کہی ہے. جو پتہ ہے وہ بتائیں گے, جو نہیں پتہ آپ سے پوچھا جائے گا. صحیح. یہ انسان کے نا یہ علم سیکھنے کی علامت ہے کہ جو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں ہم لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں نا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ ہے نا ہر مرد عورت کو دین کا علم سیکھنا فرض ہے. بے شک صحیح بات ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ کلمہ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اس کا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحیح, ماشاء اللہ زبردست. یہی کلمہ ہے. کلمے کا صحیح مقصد یہ ہے کہ بندے کو ہے نا اس کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ بندہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے. اگر بندہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت انسان کی قابل قبول نہیں ہوگی اور اللہ کی نگاہوں بندہ مجرم اور گناہ گار ہوگا. بے شک صحیح بات, بے شک. اچھا, آپ سے کلمہ پڑھانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اور ہم لوگوں کو پیغمبر نے ہدایت دی ہے کہ لوگوں تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. بے شک. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کیسے تازہ کرے, تو آپ نے اسی کلمے کی تلقین فرمائی, یعنی کہ اس کلمے کو آپ نا برابر پڑھتے رہیے, بار بار پڑھتے رہیے. بے شک صحیح. تو کلمہ آپ سے اس لیے پڑھایا گیا ہے. جی جی, بہت اچھی بات ہے. اچھا, تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جیسے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ جب نبی بن کر آئے ہیں تو ان کا جو آخری جو مقام ہے, یعنی کہ آپ کی صورت و فائز ہیں, آخری جو رتبہ ہے آپ کا, یہ کہہ رہا ہوں. جیسے نبی پہلے سب سے پہلے کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے جی. اور آخری نبی ہیں ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں, یہ آخری نبی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو پیغمبر کا جو آخری درجہ جو ہے نا وہ جو سب سے اونچا اس لیے ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جی جی جی. کیونکہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی بات چلی ہے, ایک حد چلی ہے, سال 2 سال 10 سال 20 سال, لیکن پیغمبر علیہ السلام جب سے آئے ہیں اور آپ قیامت تک نبی رہیں گے. بے شک, بے شک صحیح. اچھا, آپ کے بعد کون سے نبی آئیں گے؟ کوئی سے نبی نہیں آئیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زندہ اتریں گے ملک شام میں قیامت سے پہلے. جی جی. لیکن آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہی اتریں گے. اچھا, یعنی کہ وہ نبی نہیں, ہاں, ہمارے نبی کی پیروی کریں گے. یعنی وہ نبی کی امت ہی بن کر کے آئیں گے. ہاں جی 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 جی. ہے وہ نبی, جی جی. مگر اللہ کی شان ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا تھا اور پھر واپس ان کو دنیا کے اندر بھیجیں گے. جی. پھر اس کے بعد میں وہ نبی نہیں بلکہ نبی کی امت ہی بن کر کے آئیں گے. ہمارے نبی کی امت بن کے آئیں گے. صحیح بات. اچھا, جیسے اگر خاتم النبیین کی بات کی جائے تو اس سے کیا مطلب مانیں گے؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے. نبوت آپ کے بعد ختم ہو چکی, بالکل بس آپ پہ لاسٹ ہو چکی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سب نبیوں کے سردار ہیں اور سب سے بعد میں آئے. اچھا, اگر یہ آپ سے یہ پوچھ لیا جب ہے کہ جیسے ہم لوگ مکہ المکرمہ جاتے ہیں, گئے ہیں آپ؟
ना अल्लाह ताला भेज दे जी आपको भी हमें भी। आमीन। अच्छा तो मतलब नहीं कर पाए उम्रा वगैरह? जी ना। नहीं कर पाए, चलिए अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। और हम सब मुसलमानों की तमन्ना रहती है कि हम दीदार जहाँ पर आपकी कब्र अतहर है वहाँ हम जाएं हाँ आमीन। और उसका हम दीदार करें, ये सबकी तमन्ना होती है। सबकी तमन्ना रहती है। भाइयों को भेज दे। अच्छा ये पूछेंगे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए थे? ये मक्के में पैदा हुए थे ये। मक्के में। अच्छा आप जहाँ पर मक्के में पैदा हुए तो आपने वहाँ लोगों को जो हिदायत दी है, तो आपके पास में जो वही का सिलसिला शुरू हुआ वो किस उम्र के अंदर शुरू हुआ था? वही का सिलसिला मेरा ख्याल के 23 साल की उम्र में शुरू हुआ था तकरीबन, लगभग है जी। 23 साल की उम्र। जी थोड़ा जोर लगाइए जहन पे में, अच्छा जहन में से। गलत है हैं जी। जी, कोई बात नहीं, हम सही करा देंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो 40 साल की उम्र में सिलसिला शुरू हुआ था जी 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 सही। वही का। 40 साल के अंदर आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत थी वो नहीं बल्कि आपके ऊपर वही का सिलसिला शुरू हुआ। जी जी जी। और 23 साल नबूवत पूरा होने में ये पूरा होने तक ये सिलसिला चलता ही रहा। ये है मामला। यानी कि 23 साल आपके पास बराबर वही आती रही। यानी कि अगर कोई ये पूछ लिया जाए कि हम पर कुरान पाक कुल कितनी मुद्दत में नाजिल हुई तो उसका जवाब यही है, यही है कि 23 साल में मुकम्मल हुआ। 23 साल में मुकम्मल हुआ है। बेशक। ठीक है ना। अच्छा जैसे आप पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कितने दिन रहे वहाँ पर और लोगों को दावत देते रहे? मेरा ख्याल के ये 53 साल रहे शायद मक्के में। अच्छा चलिए थोड़ा सा अभी आप जहन में आ जाए आपके बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? ये 63 साल हुई। आपकी उम्र मुबारक वैसे तो देखो 3 उम्रें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी। एक उम्र तो ये है कि दुनिया और आखिरत में जितनी भी मखलूक हैं, जो भी फरिश्ते हुर मलाइक जिन इंसान, सबसे बढ़ के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। माशाल्लाह सही है। क्योंकि एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हज़रत फ़ातिमा भी थी वहाँ। हज़रत फ़ातिमा को आप देखते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत फ़ातिमा ने उनको चचा कह के सलाम किया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि चचा अस्सलाम वालेकुम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मैं चचा नहीं, मैं ताया लगता हूँ, मुझे आपके वालिद साहब से बड़ा हूँ मैं, बड़ा हूँ, इसे ताया लगता हूँ। हाँ। तो उनमें बहस हो रही थी, वो कह रही थी नहीं चचा लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया भाई क्यों बहस रहे हो? अब जी आपकी बेटी मुझे चचा कह रही है, मैं कह रहा था लगता हूँ कि नहीं आप चचा ही लगते हो। इन्होंने कहा कि वाह जी वाह, आप तो पैदा हुए, मैं करोड़ों अरबों साल तक ज़िंदा हूँ, बनाया हुआ हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सवाल किया उनसे कि आप जन्नत में कहीं कुछ आप देखते हो खला में दूर को कहीं? कि जी हाँ मुझे वो नूर दिखता है। किसको ने बताया? उन्होंने यहाँ थोड़ा गलती भी हो सके मेरे से बताने में भाई। कहने लगे वो नूर दिखता है, वो नूर बड़ा प्यारा है और वो नूर मुझको 70,000 साल में एक बार दिखता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया वो अब तक कितनी बार देख चुके? कि जी 70,000 बार ही देख चुका। 70 साल में एक मरतबा दिखता है और 70,000 बार आप देख सके हैं। जी देख चुका मैं कि वो नूर मैं ही हूँ, और वो नूर तुम्हारे बनने से बहुत पहला मेरा नूर है वो जो आपको दिखता है। तो आप मेरे सामने बिल्कुल बहुत बाद में पैदा हुए या बने, अल्लाह ने बनाया आपको, तो लिहाजा इसलिए मैं आप बड़ा हूँ आपसे बड़ा। एक उम्र तो ये हो उम्र तो आपकी होगी जी सबसे ज़्यादा। अच्छा इसके बारे में हदीस के अंदर आता है, आप पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है ना आदम अलैहिस्सलाम का पुतना बनाया भी नहीं गया था और मुझे अल्लाह नबी बना चुका था। जी 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 नबूवत तो शुरू से ही मिली हुई आपको जी। और एक उम्र मुबारक ये है जी 63 साल तो हमारे देखने में उम्र आई है, हमारे साथ रहे हैं, हमारे सहाबा कराम के साथ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबके सामने रहे 63 साल। लेकिन अगर मेराज की उम्र लगाई जाए तो 27 साल आपके वहाँ लग गए आसमान में। 27 साल और 63 ही हैं, तो एक उम्र ये 90 साल 90 साल जी। और वैसे ज़ाहिरा जो है ना हमारे हिसाब से 63 साल है। तो ज़ाहिर जो आपकी उम्र रहती है वो ये है कि आपको 63 साल की उम्र। जी जी माशाल्लाह आपकी बात सही है। तो इसमें हमें ये पूछे थे आपको, जैसे 63 साल की आपकी उम्र है दुनियावी एतबार से, बज़ाहिर एतबार से, तो जो आपको नबूवत मिली थी वो मिली आपको 40 साल की उम्र के अंदर जी।
तो 63 से 40 साल निकाल देते हैं, 23 साल 23 बच साल जाते हैं। बचे जी। और 23 साल के अंदर आप ना जो मदीना तैयबा है कुछ दिन उसमें गुजारे और कुछ दिन मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारे, कुछ साल वहाँ और कुछ साल वहाँ। तो हमारा सवाल ये था कि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आप अलैहिस्सलाम कितने दिन ठहरे? अब 23 साल बचे हैं ना, जी सब तो निकल गए हैं। चलिए मैं आपको बज़ाहिर कर देता हूँ, कुछ कह रहे हैं? ना, बस यही मुगालता सा हो रहा है। अब इंशाल्लाह अब सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो हाँ आपकी ज़िंदगी 10 साल तो आप मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर रहे, और जो ज़िंदगी आपकी बची 13 साल वो आपने वहाँ मदीना के अंदर गुजारी। तो ये तो आप पर जो आपने घर रहे यानी कि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर वो 10 साल रहे, और जो मदीना तैयबा के अंदर रहे वो आप अलैहिस्सलाम 13 साल रहे। तो 23 साल ये हो गए और 40 साल आपकी ज़िंदगी वो हो गई। अच्छा, अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा के अंदर गए थे शुरू में, तो आप किसके मकाम पर ठहरे थे? थोड़ी गहरी मालूमात है, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल के एक औरत थी उम्मे हानी, उनके घर ठहरे थे शायद। उम्मे हानी, चलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप ठहरे थे। इनका नाम है अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह। यो अंसारी के यहाँ ठहरे। सही कह रहे हैं आप, बेशक। तो ये ना डिस्कस करने से हम लोगों को ये फ़ायदा होता है, नॉलेज बढ़ती है और जो गलती है वो सुधर जाती वो है। समझ जाती जी, है। इसमें शर्माना ना चाहिए। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, ना हमारा मकसद एक दूसरे को जलील करना है। ना 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 ना, ऐसा ये तो होना नियत भी ना होनी चाहिए, आपकी भी हमारी भी। जी जी जी। जी जो सिखा दे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर कोई मुझे एक हर्फ सिखा दे तो मैं उसके गुलाम हो गया, हाँ, सही बात है जी। चाहे तो फ़रोख्त कर दे और चाहे मुझे आज़ाद कर दे। इतनी बड़ी आपने तलकीन फरमाई। जी जी। लेकिन हम मुसलमान इल्म से पीछे रह गए, चाहे वो दुनिया का इल्म हुआ उससे पीछे रह गए, और चाहे आखिरत का इल्म हुआ उससे पीछे रह गए। बहुत पीछे हैं ये, बहुत पीछे हैं। चलिए, अच्छा आपसे आखिरी सवाल ये करेंगे कि एक गुनाह अल्लाह के नज़दीक ऐसा है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा लेकिन उस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, वो कौन सा गुनाह है? शिर्क है वो। शिर्क। जी, शिर्क कौन सा वाला? शिर्क तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, इसको शिर्क कहते हैं। यानी कि अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना किसी को भी, शरीक करना। जी, वो जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, फरिश्ता हो, नबी हो, अल्लाह की शान में जो ज़ात में जो शरीक करेगा किसी को तो वो शिर्क होगा। चलिए माशाल्लाह, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के अंदर उसी का नाम दिया जाएगा, दूसरे का नाम नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आपसे हमें मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत बड़ी खुशी हुई। और अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, अल्लाह आपको खूब कामयाब करे इसमें, और लोगों की नॉलेज बढ़े आपके ज़रिए से, इल्म बढ़े लोगों में, और जहाँ कोई गलती पाए उसकी गलती भी सुधर जाए। अगर वो बुढ़ापे में भी गलती कर रहा तो वो भी गलती उसकी दूर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे आपको दर्शक देखने वाले होंगे, हमारे व्यूवर्स जो होंगे, आपको उन्हें आप क्या पैगाम दोगे ताकि मुसलमानों तक सही बात पहुंचती रहे? उन्हें तो यही पैगाम है कि सबसे पहले तो आपको इज्जत दे, आपको इज्जत के साथ बिठावे और खुश दिली से आपसे मुसावा करके आपसे मुलाकात करें, और जो आप सवाल जवाब कर रहे हैं इसमें कभी भी ज़रा सा भी बुरा ना माने, खुश हो के उनकी बात का जवाब दे। अगर कोई बात का जवाब नहीं भी आता तो आराम से उनको कह दीजिए, देखो यहाँ मैं जानता नहीं हूँ, या मुझे समझा दो, और जो हमें देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे जो गलती पे हैं लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस आपसे जुड़ें और ये सिलसिला चालू रखें, और अल्लाह आपको भी तरक्की दे। और अल्लाह किसी को बस ये नियत ना हो कि हम किसी को जलील कर रहे हैं या रुसवा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी ना होनी चाहिए। बस ये है कि सुधार आ जाए किसी भी तरीके से। एक बात भी अगर किसी ने आपकी तरफ से सीख ली तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी। क्या पता अल्लाह ताला आपको हमको इसी मामले में बख्श दें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।